Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today we are going to complete the chapter Major Landforms of the Earth. Means the last part of this chapter we are going to discuss, that is landform and the people. So we have studied about the three types of landforms: mountain, plateau and plains. These are the three important types of landform that we have discussed in the previous part, and we are going to study in this part what is the influence of landform on human life. Means in landforms का क्या effect पड़ता है on human life, means उनकी life कैसे होती है, and what is the effect on their food, their dress style, their livelihood. मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है वहाँ का, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे. एंड दीज लैंडफॉर्म्स सपोर्ट एंड नर्चर different kinds of plants and animals, because in all these three types of landform we can see the different type of animals and plant life, means flora and fauna both are different in these landforms. different landforms में different flora and fauna होते हैं. Clear? And the livelihood of the people is different in different landforms. उनकी livelihood भी different होती है. So one by one we will discuss life in mountains. The mountainous life is very difficult because of harsh climate, क्योंकि climate बहुत harsh होता है, बहुत जो life होती है that is quite tough. Do not support many crops because there is hardly a less land is available for cultivation. तो बहुत सारी crops वहाँ पे cultivate नहीं की जा सकती हैं, and they mostly depend on meat and milk of the animals. क्योंकि जब क्रॉप्स नहीं होंगी तो वो मीट और मिल्क, बिकॉज हर्डिंग इज़ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द माउंटेनियस पीपल. जो वहाँ पे रहते हैं उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है द हर्डिंग ऑफ एनिमल्स. तो उनके मीट पे और जो दूध होता है उस पर उनकी लाइफ डिपेंड करती है. क्लियर? and often these people often experiences landslide, because landslide is very common. लैंडस्लाइड हो जाती है. क्लाउड बर्स्ट मीन्स जो बादल फट जाते हैं और अचानक पानी खूब तेज़ी से आता है बादलों से. एंड द अर्थवेक मीन्स अर्थवेक, वॉल्केनिक इरेप्शन, दीज आर वेरी कॉमन इन माउंटेन्स. सो द लाइफ ऑफ द इन द माउंटेन the life in the mountain is very difficult for the people. Number one, because of harsh climate and because of these natural calamities. Clear? And when we are talking about the plateaus comparatively life is much easier than the mountains, क्योंकि इनके ऊपर ये फ्लैट लैंड होता है. Although the flat land is almost, जैसे जनरली कहते हैं, इट्स क्वाइट रॉकी, कल्टिवेशन बहुत नहीं हो सकता, बट क्लाइमेट इज़ क्वाइट गुड एज कंपेयर टू माउंटेन्स. क्लाइमेट यहाँ पे फिर भी ठीक रहता है. एंड बिकॉज दिस इज़ द सोर्स ऑफ मिनरल, तो मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस पीपल इज़ माइनिंग. ठीक है, मेन एक्टिविटी इज़ माइनिंग. स्मॉल अमाउंट ऑफ कल्टिवेशन इज़ पॉसिबल इन दीज एरियाज. तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो एंगेज ज़्यादातर किस में रहते हैं? माइनिंग. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ इन प्लेन्स, तो प्लेन्स की जो लाइफ होती है दैट इज़ मच ईजियर. क्यों होती है? प्रोवाइड मच बेटर लिविंग कंडीशन, बिकॉज यहाँ पे फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल. फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्शन, हाउसेस, इंडस्ट्रीज, रोड्स एंड ले डाउन द रेलवे ट्रैक्स. सबके लिए बहुत ईजी होता है कंस्ट्रक्शन करना यहाँ पे. एंड फर्टाइल सॉइल इज़ गुड फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स. सो मेन ऑक्यूपेशन इन द प्लेन एरिया इज़ एग्रीकल्चर. लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा कहते हैं. एंड यहाँ पे एग्रीकल्चर, बट दीज एरियाज इज़ ऑल्सो प्रोन ऑफ फ्लड्स, ड्रॉट्स. मीन्स फ्लड्स एंड ड्रॉट्स आर वेरी कॉमन in these areas, means in plain. And
the climate is moderate. That's why the plains are densely populated. यहाँ पे population बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे sparsely populated mountains में कोई रहना पसंद नहीं करता because of harsh climate. यहाँ पे moderate climate की वजह से densely populated. Clear? These are the three types of landform which affect on the people's life. Now this is also so important. We must understand our environment. What is environment? Environment means the surrounding. कि हमारे surrounding, हमारे आसपास क्या है. We must take care of our surrounding. Clear? And in how many ways we use the land and water? किस तरीके से हम अपनी लैंड और वाटर को यूज़ करते हैं. इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट ऑफन वी यूज लैंड इन अ वेस्टफुल मैनर. हमारी एक जनरल टेंडेंसी होती है कि हम वेस्टफुल मैनर में इसको अपनी जो लैंड होती है उसको यूज़ करते हैं. जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज ऑन फर्टाइल लैंड. फर्टाइल लैंड मीन्स फर्टाइल लैंड इज़ गुड फॉर द कल्टिवेशन और वहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं हाउसेस. तो एक तरह से जो फर्टाइल लैंड है उसको यूजलेस मैनर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे घर बना दिया. सेकेंड, थ्रो गार्बेज ऑन लैंड एंड वाटर. कूड़ा फेंक दिया. ये तो हमारी इंडियन टेंडेंसी है, अपना घर साफ किया और बाहर कूड़ा डाल दिया. और स्पेशली जहाँ से नाला क्रॉस करता है वहाँ के लोग तो बहुत स्मार्ट होते हैं. पॉलीथीन में कूड़ा डाला, घुमाया और एम लगा के सीधे नाले में. नाले से वो रिवर भी पोल्यूटेड हो जाती है, सारा पानी वहाँ जाके मिलता है. तो थ्रो गार्बेज ऑन लैंड एंड वाटर मीन्स आदमी में हम सब शामिल है. जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ कूड़ा डालता है. जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के तह तह बनता ढार. मतलब आप जहाँ देखिए कूड़ा है, इट मीन्स वहाँ पे आदमी पहुँच चुका है. क्लियर? एंड कटिंग डाउन द फॉरेस्ट बिकॉज पॉपुलेशन ग्रो कर रही है इतनी तेज़ी से, तो हमारे फॉरेस्ट हम लोग काट रहे हैं जिसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ा रहा है. क्लियर? एंड पोल्यूटिंग एटमॉस्फेयर. कि जो हमारा स्मोक और जो हमारे ट्रांसपोर्ट से जितना धुआं निकलता है उससे हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो पॉल्यूट हो रहा है. तो ये सब चीज़ों की वजह से हमारा जो सराउंडिंग एरिया है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब होता जा रहा है. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए बेटा? कई चीज़ें ऐसी जो जानवर हैं वो एक्सटेंड होते जा रहे हैं, हमारा कई पेड़ पौधे ऐसे हैं जो एक्सटेंड होते जा रहे हैं, तो हमें उन पे भी ध्यान देना चाहिए. क्लियर? वी मस्ट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ नेचर. अगर हम नेचर की वैल्यू नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारी अर्थ जो है बड़ी क्रिटिकल पोजीशन में आ जाएगी. आ ही गई है, आपने देखा है ग्लोबल वार्मिंग, सारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं. क्लियर? ग्लेशियर्स कैसे पिघल रहे हैं और आगे क्या इफेक्ट होगा इसके बारे में भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगी बेटा, आपको बताऊंगी. तो इट इज़ आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर द फ्यूचर जनरेशन. ये अब हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी अर्थ को बेटर कंडीशन में छोड़े फॉर द फ्यूचर जनरेशन. अदरवाइज वो कुछ जो हमारे एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं उनको सिर्फ बुक्स में, फोटो में ही देखेंगे. पेट्रोल नहीं मिलेगा क्योंकि हम सारा यूज़ कर लेंगे. लेकिन हमें क्या करना है? वी यूज़ ऑल दीज नेचुरल रिसोर्सेज इन द जुडिशियल मैनर, ताकि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव करें. And we should avoid using important gifts of nature in a careless manner. हमें अवॉइड करना होगा केयरलेस मैनर से. हम उन जो हमारे प्रीशियस नेचुरल गिफ्ट हैं उनको यूज़ ना करें, जुडिशियली यूज़ करें और सेव करें फॉर द फ्यूचर जनरेशन. तो बेटा इस तरह हमारा मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ चैप्टर फिनिश होता है. और अगर आपको समझ में आ गया है then like and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.